से एक बार रिवाइज करेंगे। सानिया, 3 rules of accounting, basic rules of accounting with nature. Nominal account, all losses and expenses are debit, all incomes and gains are credit. Here account, debit what comes in, credit what goes out. And personal account, credit the giver, debit the receiver. Personal account, credit the giver, debit the receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses and losses, and debit all the income and gains. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Real account, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Yeah. In real account, debit the receiver, credit the giver. Real? Is it? No. Debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. And nominal, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Yeah. You don't know the 3 rules of accounting? Nature of accounts? No? 11th में नहीं पढ़ा? No, you have not studied. ये तीनों चीजें नहीं पढ़ी आपने. Okay. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Debit what comes in, credit what goes out. Real debit the receiver, credit the giver. Personal debit all expenses and losses, credit all income and gains. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Correct. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal debit the receiver, credit the giver. And nominal, all expenses and losses, debit. And income and gain, credit. Debit the receiver, credit the giver. Real account. Personal. Personal. Personal account. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And in losses. Nominal. Nominal, credit all expenses, debit all. उल्टा. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all the expenses and losses, credit all income and gains. Personal, debit what comes in, credit what goes out. Real, debit the receiver, credit the giver. And nominal, debit. ओके, जिसके क्लियर नहीं है प्लीज क्लियर कर लेना, ठीक है. आई गिव यू द वीडियोस, ठीक है ना. जो वीडियोस नहीं देखी है जिसने, यू कैन टेल मी. जो आए हैं वो वाले नहीं, जो एब्सेंट थे वो वाले, ठीक है ना. आई गिव यू ऑल द वीडियोस. 4 लेक्चर्स वी हैव डन ऑलरेडी, राइट. दिस इज द 5th लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू, राइट. ठीक है, 5th डे का लेक्चर है हमारा. उससे पहले कि जितने भी आपके वीडियोस रहते हैं, जितने भी आपके लेक्चर्स रहते हैं, उसकी आपको मेल आईडी पर ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वो सारे भी लेक्चर्स, प्रोवाइडेड आप लोग मेल आईडी मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हो, ठीक है ना. एक और चीज ध्यान रखना, ये जो 3 रूल्स हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर होल ऑफ योर अकाउंट्स. ये अकाउंट्स की सिर्फ फाउंडेशन नहीं, ये आपकी पूरी जर्नी बनाते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर कि क्या करना है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है. प्लीज ट्राई टू लर्न देम, ठीक है ना. लर्न करना किस तरीके से, मैंने क्या ट्रिक्स बताई है आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना. दोस ट्रिक्स आर देयर इन द वीडियोस इटसेल्फ, सो यू कैन टेक देम. ओके, आगे से अपने आई कार्ड सब लोग पहन कर आएंगे. जिसके मैं नहीं देख पा रही हूँ प्लीज वेयर देम फ्रॉम टुमारो. ओके ओके, इट विल बी लाइक यू विल हैव अ फाइन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना. ठीक है, ओके. लेट्स जस्ट बिगिन विद, हम लोग कल क्या कर रहे थे, हमने यूनिट 6 तक कंप्लीट कर दिया चैप्टर नंबर 1 के. यूनिट 7 वी आर गोइंग टू डू. यूनिट 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. क्या था ये, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यूएशन प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सबसे पहला हमारा एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो इवेंट्स क्या होता है? It includes both the things that are economic as well as non-economic. Both the things that are economic as well as non-economic. When I am talking, nobody is talking. ठीक है? जब मैं बोल रही हूँ प्लीज बातें मत करना, सिर्फ मेरी जवाब देना। क्या? इकोनॉमिक, सॉरी, इवेंट्स इन्वॉल्व बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। और ट्रांजैक्शन क्या होता है? ओनली इकोनॉमिक, ओनली इकोनॉमिक। करेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स मींस हमें देखना पड़ेगा क्या ओकेजन है, क्या पड़ रहा है। समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल्स। अब मेरी एक बात सुनो, तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हारा एक कोई स्टैंडर्ड चूज करके आए हो कि हाँ हमें सीए या सीएम में करना है। यू हैव सेट योर स्टैंडर्ड्स, राइट? पता है कि हाँ हम लोगों को ये चीज करनी है, उसी के हिसाब से करोगे आगे पढ़ाई, उसी के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेन द नॉलेज। यस और नो? राइट? प्लीज शिफ्ट दिस साइड, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, थोड़ा आप भी शिफ्ट कर लो। हाँ ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा शिफ्ट करो। ओके, यू शिफ्ट ओवर देयर। मुझे शक्लें दिखनी चाहिए सबकी, ठीक है? ओके ग्रेट। स्टैंडर्ड मेंटेन किया है अपने लिए, क्या हमें सीए या सीएस करना है, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हो आप लोग, उसी के हिसाब से फाउंडेशन लेवल ट्रैक करोगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल्स, अकॉर्डिंगली यू विल बी स्टडीइंग। यस और नो? राइट? दैट इज हाउ अकाउंट्स इज आल्सो देयर। अकाउंट्स में भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेट गोल्स होते हैं, उसी के हिसाब से हमें वर्क करना होता है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बताया था या नहीं बताया था? क्या होता है वो? AS2, that is accounting standard 2, valuation of inventories, valuation of inventories। क्या बोलता है वो? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी था क्या? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो? कहते हैं इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is समझ आया? इन्वेंटरीज साथ में बोलेंगे, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is समझ आया? तो वही चीज है, क्या बोल रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोगों को इन्वेंटरीज को मेजर करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. इसी का मतलब है हम लोगों को सारी भी स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे, एम्पल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। AS29 तक आपके स्टैंडर्ड्स है। We'll be studying them later on, but यहाँ पर आपको यही चीज बताया हुआ है कि कौन से वाला प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू दैट। समझ आया अच्छे से? श्योर। एग्जाम्पल लेते हैं AS1। AS1 is your disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies। उसमें आपको सारी भी, आपको क्या, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई, ठीक है ना? अंबानी जी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई, ठीक है? अब वो सारी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या मेथड्स को, क्या क्या पॉलिसीज को फॉलो करती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी नहीं देख रहे उसको, उसके इन्वेस्टर्स देख रहे हैं उसको। हम लोग खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें थोड़ी ना पता है भाई वो लोग कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे, जब तक हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं देख सकते। कैन वी सी दैट? यस वी कैन सी दैट। वो क्या करते हैं, उसको बनाने के बाद अपने सीए से अप्रूव करवाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको यूजर्स के लिए इंटरप्रेट करवाते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन के टाइम पर वो क्या लिखवाते हैं वहां पर? AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट दे हैव अडॉप्टेड। वो सारी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को लिखवाते हैं जो उन्होंने अडॉप्ट करवाई है।
इसको बनाते टाइम, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम। समझ आया? इज इट क्लियर? सो दिस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सिलेक्शन ऑफ दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? ताकि यूजर्स को समझ आए कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल। अब हम लोगों को देखना है क्या वो स्टैंडर्ड्स जो हमने चूज किए हैं, जो हमने सिलेक्ट किए हैं, क्या वो सही है या नहीं है, क्या उसके हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या हमारा जो मेजरमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, उसमें 4-5 मेथड्स है आपके हिसाब से कौन सा है? एक तो एसएलएम है, एक क्या है? डब्ल्यूडीवी मेथड है। तो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हमारा मेजरमेंट इतना आ रहा है, एसएलएम के मेजरमेंट के हिसाब से इतना आ रहा है। एसएलएम के हिसाब से अगर हम मेजरमेंट करने लग गए तो 10 साल के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी मशीनरी की। बट एक्चुअली 0 तो हो नहीं सकती, तो मोस्टली हम क्या यूज करेंगे? डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे। बट वो भी तो एक सिलेक्शन प्रोसेस ही है ना। एंड देन वी आर इवैल्यूएटिंग कि उसके हिसाब से कितना हमारा मेजरमेंट आया। अभी समझ आया? Is it clear? Is it clear? That is what the third point says. Now you got it? Everyone? Yes, ma'am. समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है? लिख लो फिर, बना लो, बस ये फ्लो चार्ट बना लो, उससे ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। If you want, you can write down the examples for yourself. If you want, you can write down the examples for yourself. जो मैंने आपको examples अभी बताए, ठीक है? Please write them down. Done? जब भी हम लोग नया काम करेंगे क्या डालेंगे? प्लीज राइट डाउन द डेट। डन एवरीवन? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पर। एवरीवन ऑल इयर्स, सब लोग इधर देखेंगे। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स यहाँ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं किस हिसाब से हम लोगों को हर चीज का वैल्यूएशन करना है। मोस्टली यहाँ पर इन्वेंट्री की बात होती है। मोस्टली मतलब 99% दे आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज्यादा वर्क किस पे करना है? इन्वेंट्री पे ही करना है। समझ आया नहीं है? इज इट क्लियर? ओके राइट। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? कह रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कोई भी चीज का अगर वैल्यूएशन करना है ना, कोई भी चीज का अगर वैल्यूएशन करना है, सबसे पहले उसके बेस पे जाना पड़ता है। हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल सीबीआई ऑफिसर्स हैं, कोई भी तहकीकात करना है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन देखना पड़ता है ना, उसका रिलेशनशिप देखना पड़ता है, उसका क्या रिलेशन था किसी के साथ में। फिर देखते हैं कि क्या हम लोग कहाँ से खोदना शुरू करें ताकि हमें बॉडी मिल जाए, फिर उसके डीएनए को चेक करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम हैपेंस विद द अकाउंट्स, सेम थिंग हैपेंस विद द अकाउंट्स। क्या हमें पहले उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके प्रेजेंट पर आ सकेंगे। समझ आया नहीं है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जो सबसे पहली कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी है, उसको हमें निकालना है। हमने कितने पे उसको एक्वायर किया था। कई बार क्वेश्चन डज नॉट गिव यू हिस्टोरिकल कॉस्ट, यू हैव टू टेक इट आउट, यू हैव टू वैल्यूएट योरसेल्फ। कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सब हम सीखेंगे। समझ आया है? इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। नेक्स्ट करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पता चल गई, आज की कॉस्ट क्या है? करंट, अभी चल क्या रही है, मतलब वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी देखी जा सकती है।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? या फिर वो बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखी जा सकती है। रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में अगर उसको बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, रियलाइज करने पर कितना मिलेगा, रियलाइज मतलब उसको बेचने के बाद कितना मिलेगा, समझ आया? इज इट क्लियर? राइट, दैट इज व्हाट रियलाइजेबल वैल्यू इज। यू कैन इवन राइट दिस डाउन व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, आप लिख सकते हो, प्रवचन थोड़ी ना है, ठीक है, लिखते भी रहो, यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट। एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, आज, सिर्फ आज चल रही है वो वाली नहीं, आज वाली वैल्यू। इज इट क्लियर? करंट, एग्जैक्टली, करंट मतलब जो चल रही है पूरे साल भर में कितनी हो सकती है, प्रेजेंट मतलब जो आज की वैल्यू। समझ आया? समझ आया? इजी, राइट। वही बताया मैंने, करंट कॉस्ट, सॉरी, करंट कॉस्ट जो हमारी बुक्स में वैल्यू है, करेंटली उसकी कॉस्ट कितनी है, मार्केट में उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने पे वो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मशीन लेकर आए, 10,000 की लेकर आए थे, लेकिन आज के टाइम पर उसकी वैल्यू 14,000 रुपए चल रही है मार्केट में, इतने पे हमें मिलेगी अगर दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी तो। कॉस्ट, कॉस्ट बोल रहे हैं, कॉस्ट और वैल्यू अलग अलग है ना। रियलाइजेबल वैल्यू बेटा अपनी मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद पता चलती है। रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में कितने की बेचेंगे, कार लेकर आए हैं 4 लाख की लेकर आए थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो हो गई उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज वही कार मार्केट में सस्ती हो गई है, 3 लाख की हो गई है, दैट इज करंट कॉस्ट, दैट इज व्हाट करंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, हमने अपनी ही कार जो 4 लाख की लेकर आए थे उसकी हमने डेप्रिसिएशन हटाई और तब अब हमें पता चल रहा है कि वो 2.5 लाख की बिक सकती है मार्केट में, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, एक्सक्यूज मी, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स सारे भी हमने मार्केट में छानबीन की एंड देन हम लोगों को क्या पता चला कि अच्छा वो 3 लाख की थी, हमारी वैल्यू 4 लाख की थी एंड देन अभी 2.5 लाख की रह गई है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, 2.5 लाख। समझ आ रहा है? इसके हिसाब से ना दे आर नॉट टेलिंग यू कि यही सब चीजें अलग अलग तरीके से होती है, दे आर जस्ट टेलिंग यू अलग अलग तरीके से हमें कैसे किसी चीज की वैल्यू मिल सकती है। समझ आया नहीं है? वो ये नहीं बोल रहे आपको अलग अलग चीजें निकालने के लिए, वो ये बोल रहे हैं कि आपको अगर अगर रियलाइजेबल वैल्यू दे रहे हैं तो आप उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे निकालोगे। दे आर जस्ट टेलिंग यू कि मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई चीज निकालने के, वैल्यू निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सो दीज आर द 4 मेथड्स। ओके, जब हम करेंगे ना क्वेश्चंस देन यू आर गोइंग टू, ठीक है, जब हम करेंगे ना, अभी आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग इसको जानेंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ आया है कि क्या क्या मीनिंग होते हैं इन लोगों के, लिख लिया? ओके ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, ये वाला चैप्टर, सॉरी ये वाली यूनिट भी खत्म होती है हमारी। मूविंग फर्दर वी हैव गॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्लीज राइट डाउन, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट डाउन प्लीज। लिखा? ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस किस इश्यूज से डील करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है फॉर ओनली लाइक 4 to 5 मार्क्स या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का भी। मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चन आते नहीं है, इसीलिए ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से देते हैं, एक हाफ में आपको बता देंगे, एक हाफ में आपको थ्योरी दे देंगे कि व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद,
फिर आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे एंड देन लेटर ऑन दे विल बी टेलिंग यू कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कोई भी नेम एनी 4 to 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन दे विल बी टेलिंग यू व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। वो ऐसे करके बोल देंगे टेल AS1 AS2 AS3 ऐसे करके बोल देंगे। सो ये प्रॉपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट हाफ 2 मार्क्स का, देन सेकंड हाफ 2 मार्क्स का, ऐसे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? ऐसे करके ये थ्योरी मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका। सो प्लीज मेक दिस चार्ट, आपका इतना चार्ट बनाओ इसका यहां तक, प्रिपेयर दिस चार्ट। कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इश्यूज ऑफ, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहला इश्यू रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरमेंट करना, पहले में रिकॉग्नाइज करना, दूसरे में मेजरमेंट करना, तीसरे में प्रेजेंट करना और चौथे में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, राइट। डन। सबसे पहले रिकॉग्निशन, देन मेजरमेंट, देन प्रेजेंटेशन एंड लास्ट डिस्क्लोजर। इज इट क्लियर? डन, डन एवरीवन, ओके ग्रेट। हम लोग आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। लुक, दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड होता क्या है, वही तो स्टैंडर्ड तो वर्ड ही हो गया ना, स्टैंडर्ड होता क्या है, व्हाट इज इट? बेंचमार्क, करेक्ट, दैट मींस इट इज अ बेस फॉर योर अकाउंटिंग, इट बिकम्स अ बेस फॉर योर अकाउंटिंग। हम लोग कोई भी अकाउंटिंग करेंगे, कोई भी वैल्यूएशन करेंगे, उसका बेस क्या होगा? उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, करेक्ट, ओके। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे। AS1, AS2, AS3, AS4, AS6, written 1 2 3 4 6, then AS10, 10, then AS20, AS29, AS26, very 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 important for you all, AS26 and AS29। डन, बस इतने से लर्न करने हैं, बाकी आप सारे भी लर्न कर सकते हो इफ यू वांट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, AS1 व्हाट इज इट? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे कि नाम से ही समझ आता है क्या, सारी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमने अपनाई हुई है वो हम क्या लिखेंगे, सारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। आप वर्किंग नोट्स बनाते हो, वर्किंग नोट्स बनाते हो, वर्किंग नोट्स भी एक टाइप की आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ही है। कैसे? हमने डेप्रिसिएशन को किस तरीके से मेजर किया है, क्या क्या कैलकुलेशंस की है, वो सारी भी नीचे लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है? लिखी जाती है ना। हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 2022, लिखते हैं नहीं लिखते? फिर 2022 23 ऐसे करके लिखते हैं नहीं लिखते? ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर वी आर मेजरिंग एंड व्हाटएवर वी आर डिस्क्लोजिंग अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वी हैव मेड, वो सारे भी क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? AS1 है। नेक्स्ट AS2, सीधा सीधा सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड देन प्रिंसिपल ऑफ
कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्लीज से, प्लीज स्पीक, सब लोग बताएंगे क्या? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। स्पीक अप, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है ये? Inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. Speak up. Inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. What is NRV? Net realizable value. Net realizable value. What is net realizable value? Market value or MRP. MRP is maximum retail price. That is what it is. Right? Okay. Market value. Correct. Okay. लिख लिया आप लोगों ने? लिखा आप लोगों ने? इसी में ही आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। AS3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सभी ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट? ये आपका इंटरमीडिएट में आएगा। दिस विल कम इन इंटरमीडिएट, ये सभी का इंटरमीडिएट में आएगा। ठीक है, बी इट CA और CM में, सभी का CA और CM में इंटरमीडिएट में आएगा ये। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, AS4 contingents and events occurring after the balance sheet date. Contingencies and events occurring after the balance sheet date. Speak up. Contingencies and events occurring after the balance sheet date. लिखो, you have to learn them. मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ। What do you mean by this one? AS4 क्या मतलब बताता है? मतलब जैसे कोई इवेंट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का इंटरेस्ट आना था, आया नहीं इस साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर आ गया। दैट इज द कंटिंजेंसी और इवेंट, दैट इज नॉट अ कंटिंजेंसी बट एन इवेंट दैट हैज अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डे। इस साल नहीं आया, अगले साल आ रहा है। प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन, ड्रिंक वाटर। एक्सक्यूज मी। Okay, done. Done? All settled? ठीक है, ओके। AS6 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले हटा दिया था बीच में और फिर से ले आए। पहले AS6 को मर्ज कर दिया था with AS10. They had merged it with AS10. That is why I made you write down AS10 as well. ठीक है ना? Because that is also very important for you all. ठीक है, पहले AS6 को मर्ज कर दिया था with AS10. Now again they have brought up AS6. Keep on breathing everyone. Keep on breathing. सांस लेना भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, ओके, बैक टू वर्क। AS6 क्या है आपका? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये आपका AS10 के साथ में मर्ज क्यों किया गया था? बिकॉज AS10 यहाँ पर आपका बनाया गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब एक चीज सुनो, प्लांट और इक्विपमेंट दोनों पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ कि ना? लगता है नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या प्रॉपर्टी में हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा? ऐसा जरूरी नहीं। कई बच्चे ना एक्चुअली प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन लगाकर आ जाते थे। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, एंड एक्चुअली पीपल हैव मेड दिस थिंग कि वो लोग अगर 10% का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो वो लगाकर आ रहे हैं बच्चे, उनके मार्क्स उसी पर ही कट हो जाते थे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं क्या? AS10 एंड AS6 इज मर्ज्ड, सो दे थिंक एक्चुअली वो मेंटालिटी बन जाती है ना कि डेप्रिसिएशन तो उसी के साथ मर्ज हो गया भाई, क्यों हटाना है, प्रॉपर्टी पे भी लगा दो, क्या दिक्कत है? बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है, हमेशा एप्रिशिएट होती है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है। समझ आ रहा है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से कभी डेप्रिशिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन और एनीथिंग, ठीक है ना? बट वैसे कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। 1 रुपया तो बढ़ेगी बढ़ेगी,
1 रुपया तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज उसको लिया है ना तो कल 1 रुपया तो बढ़ा के ही मिलेगा उसको। इज इट क्लियर? लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। जस्ट रिमेंबर व्हाई। ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है। व्हाई? इकोनॉमिक्स भी है ना आप लोगों के पास। व्हाई? और क्या रीजन है? और करेक्ट, स्कार्स रिसोर्स। लैंड इज अ स्कार्स रिसोर्स। क्या डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम? राइट, लैंड की डिमांड ज्यादा है, हर किसी को चाहिए, लेकिन सप्लाई कम है, बहुत लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। समझ रहे नहीं है? इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज कीप ऑन अप्रिशिएटिंग। आगे से अगर कोई पूछेगा आप लोगों से, आपके क्लाइंट्स भी पूछेंगे, बता दोगे ना क्यों बढ़ रहा है? बता दोगे ना? क्या डाउट है? डाउट है? लग रहा है? बता दोगे? ओके, सो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आपका विड्रॉन परसुएंट, देखो लिखा हुआ है विड्रॉन परसुएंट टू द इश्यू ऑफ AS 10। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये उन्हीं के बारे में डील करता है, प्रॉपर्टी के बारे में, प्लांट के बारे में और इक्विपमेंट के बारे में। ये आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में, ये भी आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। एंड काफी सारे ऐसे हैं जो मैंने लिखवाए भी नहीं है और बहुत सारे आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। AS 7, AS 14 यू विल बी रीडिंग देम आउट इन योर इंटरमीडिएट। AS 13 यू विल बी रीडिंग इट आउट। ठीक है, और इनके वैल्यूएशंस भी समझोगे। अभी तो आपकी कोई वैल्यूएशंस नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे यू डू नॉट हैव एनी वैल्यूएशंस ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे ही आप इंटरमीडिएट में आओगे आपके वैल्यूएशंस भी आएंगे कि किस तरीके से इनको वैल्यू करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके ग्रेट, कीप ऑन ब्रीदिंग। AS 20, AS 20 इज अर्निंग्स पर शेयर। ये शेयर कैपिटल में आएगा। अभी जब शेयर्स का चैप्टर पढ़ोगे उसमें है आपके पास। नेक्स्ट AS 26 इंटैंजिबल एसेट्स, कोई नाम बताओ? करेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसी के अंदर आता है। AS 26 इंटैंजिबल एसेट्स लिखा, इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, गुडविल लिख लिया, वेरी गुड। AS 29 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्या? प्रोविजंस, कंटेंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटेंजेंट एसेट्स। ये अभी हमने कंप्लीट किया है, मेरे ख्याल से कल ही कंप्लीट किया है ये हमने चैप्टर, राइट? कंटेंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटेंजेंट एसेट्स, करेक्ट, डन। ये चैप्टर भी यही समाप्त होता है, यूनिट आई मीन, बस इतनी सी थी ये। ठीक है, डन एवरीवन? ओके ग्रेट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू नंबर 9। ये आपका ना चैप्टर अभी नहीं आएगा, ये इंटरमीडिएट और फाइनल्स का चैप्टर है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट आउट। ये इंटरमीडिएट और फाइनल्स का चैप्टर है, नथिंग इज कोई भी अपने आप से इन्होंने नहीं बनाया हुआ है, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली बाहर के बने हुए थे। आपको पता है ना, हमारा जितना भी अकाउंट्स है या जो भी है, व्हाटएवर द लॉ इज, वो मोस्टली बाहर के लॉज से अडेप्टेड होता है, अडेप्टेड होता है। पूरा नहीं बोलते हैं क्योंकि पूरा भी हम कॉपी नहीं करते, बट अडेप्टेड होता है काफी कुछ, राइट? तो इन्होंने क्या बोला इंडिया वालों ने कि कुछ खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाकर देखते हैं ना, तो इन्होंने खुद के अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, जिसको इन्होंने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको हम बोलते हैं इंड AS। क्या बोलते हैं? इंड AS, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे अगर तुम सारे भी नंबर्स देखोगे ना, नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट इन अप्रोक्सीमेशन विद, सारे भी सेम नहीं है बट हाँ कुछ कुछ सेम है, एंड देन नेम इज आल्सो सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे AS 2 था वहां पर, ये क्या है? इंड AS 2, क्या है? इन्वेंटरीज। AS 7 था, वहां पर AS 3 था, यहाँ पर कौन सा है? इंड AS 7, क्या है? कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, वही कैश फ्लोज ही है बेसिकली, राइट? नेक्स्ट AS 1 क्या था? प्रेजेंटेशन ऑफ, वहां पर क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है, राइट? यहाँ पर आपका नंबर 10 में दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी 16 में दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहां पर कौन सा था? नंबर 10। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नंबर 23 ही है बोरोइंग कॉस्ट, सेम ही है, तो
सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ पर 38 में दे रखा है क्या, वहां पर कौन सा था 26। Ind AS 38 is intangible assets, AS 26 is intangible assets, same right। यहाँ पर कौन से में दे रखा है आपको अर्निंग्स पर शेयर 33 में, वहां पर कौन सा है AS 20 राइट। इजी, कुछ नहीं डिफरेंट है, बहुत कुछ सिमिलर है, बहुत कुछ सिमिलर है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। समझ आया, इजी है एवरीवन? ओके ग्रेट। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड मूव ऑन टू अ फ्रेश पेज। उसमें लिखो अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड, प्लीज क्लैप एवरीवन, clap 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 clap, very good, you have done a great job। we are moving on to chapter number 2, क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस लिखा, लिखो लिखो लिखो। जब भी नया काम करेंगे क्या डालेंगे, डालो बेटा। ओके डन, ठीक है। आ जाओ जरा, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या क्या है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, दूसरा जर्नल, सारी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, बुक कीपिंग राइट, एंड तीसरा क्या ट्रायल बैलेंस, जो हम लोग लास्ट में टैली करने के लिए बनाते हैं राइट। इजी इजी, ओके। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? सारे भी एविडेंसेस जहां से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। सारे भी एविडेंसेस जहां से हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। नींद आ रही है, मैं गेम खिलाऊं? हाँ गेम खेलना है, नहीं ओके तो फिर अब हाँ खेल लेते हैं। ओके हु ऑल सेज गेम खेलना है, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ फ्रैंकली यू कैन रेज योर हैंड। गेम खेलना है या अभी पढ़ना है, थोड़ा सा तुम लोग फ्रेश हो जाओगे। इफ यू वांट टू प्ले गेम यू कैन रेज योर हैंड। गेम खेलना है, प्लीज रेज योर हैंड जिसने खेलना है। ओके नहीं खेलना है किसी ने भी, ओके ठीक है पढ़ो जरा। हाँ यार राफ्टिंग कहाँ करोगे तुम, पानी है या नदियाँ दिख रही है तुम्हें? ओके एवरीवन जस्ट लुक ओवर हियर, सोर्स डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज बेसिकली द एविडेंस दैट वी कलेक्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज द बेसिकली एविडेंस दैट वी कलेक्ट फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। हमें पता तो होना चाहिए ना क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट की बदौलत। क्या क्या हो सकते हैं एग्जांपल, इनवॉइसेस, कैश मेमोज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी बिल्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज रिसीट्स एंड एवरीथिंग आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। समझ आया? नेक्स्ट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? journals, journals are the books of original entry. What do you mean by ledgers? Correct, these are the separate books of accounts that are maintained with the accordance of journals, in the accordance of journals। बस सारे भी चीजें हमारे जर्नल से मैच होनी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको हम और क्या बोलते हैं, पोस्टिंग ऑफ जर्नल्स, पोस्टिंग ऑफ जर्नल्स। समझ आया? इजी है, इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज द बैलेंसिंग स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज द बैलेंसिंग स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग स्टेटमेंट? करेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मस्ट टैली विद ईच अदर। लास्ट का जो बैलेंस होगा वो दे मस्ट टैली विद ईच अदर, सो इट विल शो द फाइनेंशियल पोजीशन और द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन शो करता है? किसने बोला स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट्स, दोज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करके दिखाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दो वर्ड्स है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन शो कर रहा है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन शो कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पोजीशन कौन शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको ये भी तो समझ आना चाहिए ना, अगर कोई स्टेज पे डांस कर रहा है दैट इज द परफॉर्मेंस, मतलब वो अभी कर रहा है, वो अभी कर रहा है, दैट इज द परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट दे आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। पोजीशन क्या होता है? जो एंड रिजल्ट होता है। पोजीशन इज द एंड रिजल्ट। प्लीज स्पीक अप एवरीवन। पोजीशन इज द एंड परफॉर्मेंस इज द स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ओके, प्लीज राइट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, सॉरी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। एंड पोजीशन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, करेक्ट। प्लीज राइट डाउन। लिखा? ओके, वेरी गुड, लिख लिया, वेरी गुड। लिखा? ड्रिंक वाटर एवरीवन। जिसने लिख लिया प्लीज ड्रिंक वाटर। ओके, हम लोगों ने, आपने पानी पिया? पिया पक्का? पी लो। सबने पानी पी लिया? ओके, बैक टू वर्क। हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट की 3 चीजें पढ़ी थी, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? राइट। कोई मुझे बता सकता है बिना यहाँ पर देखे कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और कौन कौन से नेम्स होते हैं? Natural, artificial and representative. What do you mean by natural personal account? God made. Natural personal account is God made. What do you mean by artificial personal account? Man made. Right? Okay. And what is representative? Somebody. Something means वो तो ठीक है, but what are they? Something what? Correct. They denote expenses, profits, incomes and losses. Profits बोल दिया मैंने, gains क्यों बोल रहे हो तुम लोग? Incomes and losses. Right? Now you got it. Sure. अच्छा, इसके examples देखें एक बार. Okay. मैं बोल रही हूँ राम, श्याम, सीता, गीता. Who are they? Natural personal account. Natural personal account. Why? Because they are God. They are God. Correct. What are artificial personal account? Just tell me. अगर मैं बोल रही हूँ बैंक अकाउंट, artificial personal account. Why? मैन मेड. इट इज मैन मेड क्योंकि बैंक के नाम भी होते हैं. बैंक के क्या नाम होते हैं? ICICI, SBI, PNB, etc. etc. Right? Easy? Okay, great. Tell me what is Messrs XYZ account? Messrs XYZ account. Artificial personal account. Why? Because again, this is a company and this is man-made. Okay, great. Tell me if I'm seeing outstanding rent. Representative personal account. Representative क्यों? Because it is representing a, correct.
It is representing an expense, right? Easy. Okay, tell me accrued income. Representative personal account, because again it is representing an easy. Easy. Okay, great. easy है मेरे ख्याल से सभी का. इम्पर्सनल, दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल, जिसके अंदर पर्सनल के अंदर फिर से तीन चीजें वही सब जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. इम्पर्सनल के अंदर दो चीजें, रियल एंड नॉमिनल. हमने सबसे पहले यही सब डिस्कस किया है, राइट? क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने ये डिस्कस किया है, राइट? ओके. जब तक आप लोगों को ये लर्न नहीं होते हैं, प्लीज ट्राई टू मेमोराइज देम घर पर, ठीक है? जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप इसको पढ़ोगे दिन में, चाहे 4 बार पढ़ो, चाहे जाप करो, वट एवर यू कैन डू, प्लीज डू, ठीक है ना? ताकि हम लोग आगे फिर बढ़ सके और आप लोगों के लिए अकाउंट्स इजी हो जाए. इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक्स. ओके, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग जर्नल्स पर. अच्छा, मुझे बताओ, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सभी को पता है? इज इट श्योर? ओके, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये आते भी हम लोगों के. अच्छा, दिस इज वन क्वेश्चन, प्लीज लुक. हाँ, ये करवा दिया था मैंने, क्या हमने डिस्कस भी किया था? तो वही हम कर रहे हैं ना, ठीक है? ओके, लिसन एवरीवन, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, मैंने आपको फोर्थ रूल भी बताया था जो हमने खुद बनाया हुआ है. क्या था? एसेट्स इंक्रीज तो एसेट्स डिक्रीज तो लायबिलिटीज इंक्रीज तो लायबिलिटीज डिक्रीज तो. समझ आया? इजी इजी. ओके, फिर से बोलेंगे, एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट और लायबिलिटीज डिक्रीज तो. ओके, ग्रेट. यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बताना है, इन्होंने बोला है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस entered into by R after he started a business. Okay, show various accounts will be affected. हमें accounts बताने हैं that will be affected with these transactions. बता सकते हैं? Okay, ठीक है. Number 1, कह रहे हैं R started business with 5,000. Okay, we will be just choosing these things. ठीक है ना? 5,000. We will be not doing with the 3 zeros that are in the above. ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे. 5,000 रुपीज से उसने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है. बिजनेस स्टार्ट किया है. अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होंगे अफेक्ट? दो अकाउंट्स, कैश और कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? करेक्ट. व्हाट इज कैपिटल? नेम ऑफ द ओनर. ये चीज ध्यान रखना, कोई भी ये नहीं बोलेगा वो कैश होता है जो हम लेकर आते हैं. फिर कैश क्या होता है? फिर वही लूप में चले जाएंगे हम, ठीक है? तो लूप में नहीं जाना है. क्या? कैपिटल इज द नेम ऑफ दी ओनर. ओके, यहाँ पर ध्यान दो, क्या क्या कैपिटल, एक तो कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट. कैश को हम क्या करेंगे? कैश को क्या करेंगे? क्यों? व्हाट कम्स इन. यहाँ पर हम लोगों को अकाउंट भी बोलना है. कौन सा? रियल अकाउंट. विच अकाउंट? कैपिटल को क्या करेंगे? क्यों? अरे अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. समझ आया? इजी है, इजी है. ओके, ठीक है. ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर एंड कैश. फर्नीचर क्या होगा? और कैश क्या होगा? फर्नीचर क्यों डेबिट हो रहा है? करेक्ट. एसेट इंक्रीज, ए प्लस, राइट? रियल अकाउंट. ओके, कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्यों जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज रियल अकाउंट अगेन. ओके, ठीक है. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क. सैलरी एंड कैश. यहाँ पर मुझे जर्नल्स नहीं बताने, आपने सिर्फ दो अकाउंट्स बताने कौन कौन से अफेक्ट हो. वी आर नॉट डूइंग विद द जर्नल्स, ठीक है ना? तो आप ऐसे मत बताना कि इट डेबिटेड टू दिस थिंग. डोंट टेल मी. ओके, बस दो अकाउंट्स बताओ, नाम बताओ. क्या क्या है? पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, सैलरी एंड पक्का कैश या क्लर्क? करेक्ट. क्या? हु सेड क्लर्क? क्लर्क होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? नहीं होगा, क्लर्क नहीं होगा. क्या होगा? कैश होगा, क्योंकि बिजनेस के तब भी आउटस्टैंडिंग होगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, क्लर्क नहीं आता है. क्लर्क क्यों नहीं आता है? किसी बंदे का नाम क्यों नहीं आता है?
अंबानी जी की दुनिया में इतने सारे क्लर्क्स काम कर रहे होंगे, इतने सारे क्लर्क्स, उनको थोड़ी ना हर किसी क्लर्क का नाम पता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफिसेज में कितने सारे क्लर्क्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें थोड़ी ना हर किसी क्लर्क का नाम पता है। तो फिर एक एक क्लर्क का नाम लिखना तो इट इज इम्पॉसिबल, राइट? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट जब उनके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो सैलरी के नाम पर कटते हैं। जब भी उनके बैंक अकाउंट से कटते हैं पैसे, तब वो सैलरी के नाम पर कटते हैं। एक और इसका पहलू देखोगे तो जो भी एम्प्लॉय होता है ना, उसके पास, अगर आपने मीम्स वगैरह देखे होंगे, आजकल के जमाने के बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना, तो इंस्टाग्राम पे देखते होगे क्या बोलते हैं कि इट इज वेरी, क्या बोलते हैं कि उससे ज्यादा खुशी तो ये मिलती है कि जब वो वाला मैसेज आता है, सैलरी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, सैलरी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बट वो सैलरी ही क्रेडिट क्यों कर रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में? बिकॉज दैट इज द नेम दैट दे आर प्रोवाइडेड। समझ आया नहीं है? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से नहीं आता है, वो किससे आता है? सैलरी के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? तो वो क्लर्क के नाम से नहीं लिखेंगे, वो सैलरी के नाम से ही लिखेंगे फॉर्म में भी। समझ आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सैलरी और कैश। सैलरी क्या होगा? अरे होगा क्या? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। और कैश क्या होगा? सैलरी डेबिट क्यों होगा? नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश हमारा क्रेडिट क्यों होगा? रियल अकाउंट। लिख रहे हो साथ साथ? है? अच्छा, किया हुआ है तुम लोगों ने? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पेड रेंट। रेंट एंड कैश। रेंट क्या होगा? डेबिट। कैश क्या होगा? क्रेडिट। राइट? व्हाई रेंट डेबिटेड? नॉमिनल अकाउंट। कैश क्रेडिट? रियल अकाउंट। रिसीव्ड इंटरेस्ट? अरे अरे, मैं सिर्फ दो अकाउंट्स पूछ रही हूँ, कौन कौन सा? कैश और इंटरेस्ट। कैश और इंटरेस्ट। कैश क्यों आया? डेबिट व्हाट कम्स इन रियल, राइट? वो डेबिट होगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट क्या? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का सेकंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दैट इज द इनकम। समझ आया? इजी? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप मुझे करके दिखाओगे अभी। अच्छा, ये तो इक्वेशन है, जस्ट वेट। हाँ, ये इक्वेशन आ गई है, डोंट डू इट, डू दिस वन। ये एग्जांपल दिख रहा है? करो जरा। अभी क्या भी करके दिखाओगे, एंड अगर सभी ने सही किया तो फिर अच्छा सा गेम खेलेंगे पक्का। हाँ, जर्नल एंट्रीज। जर्नल्स बनाने आते सभी को? आते हैं या नहीं आते? यू कैन टेल मी। आते बेटा आपको? पक्का? व्हाट इज योर नेम? अनन्या। आते हैं अनन्या? पक्का? बाकी सबको आते हैं? हर्ष आते हैं बेटा? पक्का? यू कैन टेल मी इफ यू नीड टू नो हाउ टू मेक जर्नल्स, आई विल टेल यू ऑन स्क्रीन। आते हैं सभी को? ओके, ठीक है, बनाओ सर। along with the narrations please, narrations के साथ लिखना। करो। quickly within 10 minutes. Done? Very good. Please do it yourself. एक दूसरे की हेल्प मत लेना. Try to do them yourself.
ओके, वेरी गुड. All those who have done, please drink water. It's up to your choice. You want to drink water or not. I'm not forcing anyone. हाँ जी. मैं धुंधली दिख रही हूँ? क्या हुआ? अच्छा, ओके. कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइस को रेस्ट दो, है ना? किस किस को धुंधला दिख रहा है? हाँ, और किसी को भी दिख रहा है क्या? नहीं, श्योर बेटा, थोड़ा सा आइस की एक्सरसाइज भी किया करो, ठीक है? हाँ. हाँ, इफ यू वांट आप जा सकते हो आइस वॉश करने. नहीं, इज इट ओके? आई नो. ओके, ऑल सेट एंड डन. सबका हो गया? ठीक है, स्टार्ट करें क्या? ठीक है, नंबर 1 देखेंगे. अगर सभी का करेक्ट है तो टिक लगाएंगे एंड 2 मार्क्स देंगे खुद को. सो दिस इज फॉर 10 मार्क्स. सभी के अगर 10 ऑन 10 आए हैं तो हम लोग एक गेम खेलेंगे, और नहीं आए होंगे तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई के लिए. ठीक है? क्या हुआ? हाँ, सबके आएंगे तो फिर तो सभी को ट्रीट मिलेगी ना. क्या दिक्कत है ना? ट्रीट मिलनी चाहिए फिर सभी को. ठीक है? क्या एक्सेप्शन चाहिए बताओ? थोड़ा सा क्या? चलो ठीक है, अगर 10 में से 9 भी आए किसी के तो भी हम लोग खेलेंगे. ठीक है? ओके, ठीक है, चलो. अच्छा, ओके, स्टार्ट करें अभी? नहीं, अगर देखो, एक एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है. इफ डेबिट इज करेक्ट देन 1, क्रेडिट इज करेक्ट देन 1. सो बोथ मिलाकर कितना है? बेटा जीरो कर दो, है ना? ठीक ठीक लगा लो. सब्जियां खरीदने आए हो तुम लोग? है? ओके एवरीवन, प्लीज. ओके, अब पढ़े. ठीक है. फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज. क्या लिखेंगे? अच्छा, देखो, अब मेरी एक और बात सुनना. कैश अकाउंट, ये आपकी लाइन है. यहाँ पर आपने लिखा कैश अकाउंट. ये आपकी एलएफ की लाइन है. यहाँ पर आप डेबिट लिखोगे. 2 करके यहाँ से डिस्टेंस करके 2 लिखोगे. देन यू हैव टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट एंड देन नरेशन. और कैश के सामने कैश की अमाउंट एंड कैपिटल के सामने कैपिटल की अमाउंट. ऐसे लिखा है सबने. गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स. वेरी गुड. चलो, 2 तो मिले, 0 तो नहीं आ रही किसी की. ओके, नेक्स्ट. वेजेस एंड सैलरीज पेड. वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश. सभी का है? 2 मार्क्स. वेरी गुड. नेक्स्ट. रेंट रिसीव्ड ₹2 लाख. कैश टू रेंट. करेक्ट. 2 मार्क्स. नेक्स्ट. परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेजेस टू क्रेडिटर. जिसका गलत है प्लीज कट योर मार्क्स अकॉर्डिंगली. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर. क्या लिखा है बेटा? स्टॉक. स्टॉक क्यों लिखे हैं? स्टॉक तो आता ही नहीं है ना. व्हाट हैव यू रिटन?
टू क्रेडिटर्स, तो डेटर्स कर दिया, क्या लिखा, टू बैंक लिख दिया, नहीं। क्रेडिट पर जब भी माल खरीदते हैं, लिसन एवरीवन, क्रेडिट पर जब भी माल खरीदते हैं क्रेडिटर्स से खरीदते हैं, क्रेडिट पर जब भी माल बेचते हैं तो डेटर्स को बेचते हैं। तो खरीदना इज फॉर क्रेडिटर्स एंड बेचना इज फॉर डेटर्स। समझ आ रहा है एवरीवन? प्लीज स्पीक अप। नेक्स्ट नंबर 5, sold goods and received payment in check, बैंक टू सेल्स, कितना, 8,16,000, करेक्ट। लिखा, लिखा सभी ने, ठीक है। अब मुझे जरा मार्क्स बताओ अपने अपने, है ना, 6 आउट ऑफ 10। चलो गेम तो गया तुम्हारा, हाँ जी 10 on 10, वेरी गुड, हाँ जी। अच्छा नरेशन लिखी है सबने या नहीं लिखी? लिखी है, नहीं लिखी बेटा एक मार्क और काट दो नरेशन का फिर, जिसने नहीं लिखी है, ठीक है। हाँ जी 8 आ रहे, हाँ जी 8, हाँ जी 10 10 9 8 10, सिमरन 10 8 10 9, ओके वेरी गुड, क्लैप फॉर 10। चलो आगे का करते हैं हम लोग। क्यों फायदा नहीं, क्लैप नहीं है तुम्हारे लिए है? मटीरियलिटी गेम भी नहीं होगा बेटा है। ओके एवरीवन प्लीज गेट अप, क्लोज योर नोटबुक्स, गेट अप, खड़े हो जाओ चलो खड़े हो जाओ, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, चलो सो रहे हो तुम सारे। तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हो, मैं यहाँ पर जरा पीछे हो जाऊँ जरा। ओके एवरीवन प्लीज मेंटेन अ गैप एक दूसरे के बीच में, ताकि मुझे शक्लें दिखे, मुझे शक्लें दिखनी है। गेम है आपका, ठीक है। सिमरन थोड़ा सा इधर, अरे 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 टेबल जितना मत खिसकाओ, उठाकर करो, उठाकर करो, ठीक है। हाँ चेयर इतना मत खिसकाना प्लीज, उठाकर करना अगर साइड करना हो, ठीक है। वी आर प्लेइंग अ गेम और आप मुझे दिख नहीं रहे हो, दैट इज बिहाइंड आयुष। ये इतने बड़े बड़े हैं ना बेटा, थोड़ा साइड साइड हो जाओ, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ नहीं गेम खिला रही हूँ मैं, इधर हो जाओ थोड़ा सा, इधर हो जाओ, हाँ आ जाओ। ओके ठीक है एवरीवन, जब मैं अप बोलूंगी तो हाथ नीचे करने हैं सबने, एंड जब मैं डाउन बोलूंगी तो हाथ ऊपर करने हैं सबने, ठीक है। ऐसे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और पूरे हाथ ऐसे ऐसे जाने चाहिए, दिखने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। ओके थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारना बेटा किसी के, ठीक है। ओके एवरीवन, हाथ प्रॉपर ऐसे दिखने चाहिए मुझे, ठीक है ना, हाथ दिखने चाहिए, तभी मैंने आप लोगों को शक्लें भी दिखाने को बोला है, ठीक है। ओके या एवरीवन डाउन, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ चलो ओके, अप, दोनों हाथ डाउन, अप डाउन, अप लेफ्ट ठीक है बैठ जाओ ओके आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ बस अब ठीक है, ओके आई कैन सी दैट। आप इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, हाँ आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, ओके लेफ्ट, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। ओके राइट लेफ्ट, बैठ जाओ बैठ जाओ, ओके राइट लेफ्ट, बैठ जाओ, राइट, अरे वाह लड़कियां खड़ी है, क्या बात है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, अप डाउन
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट अप लेफ्ट ओके वेरी गुड प्लीज क्लैप फॉर ट्विंकल एवरीवन मजा आया नहीं आया शक्लें मत बनाओ बोलो हाँ मैम मजा आया बहुत हाँ? मजा आया ओके प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन थक गए होंगे सारे बहुत मेहनत कर ली है सभी ने आज ठीक है मजा आया एवरीवन ओके थैंक यू सो मच चलो क्लैप फॉर योरसेल्व्स बैक टू वर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4 इसमें दो चीजें करनी है आपको एक करना है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड एक करना है ट्रेडिशनल अप्रोच अब मेरी बात सुनना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है सभी को या नहीं पता है प्लीज टेल मी जिसको नहीं पता प्लीज रेज योर हैंड नहीं पता ओके लिसन एवरीवन अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है एक तरफ बनाएंगे एसेट्स इसको लिखेंगे इक्वल्स एक तरफ बनाएंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इसी के नीचे सारे भी क्या लिखते चले जाएंगे एसेट्स के नाम इक्वल करते चले जाएंगे लायबिलिटीज और कैपिटल के साथ में फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कह रहे साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ थ्रू बैंक ऑफ ₹4000 अब मेरी एक बात सुनो क्या क्या दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर कैश है बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट एंड कैपिटल बैंक हमारा एसेट होता है या नहीं होता है एसेट होता है तो क्या मैं बैंक को एसेट नहीं लिख सकती हूँ बैंक के अंदर मैंने कितने अमाउंट डालनी है अब मुझे एक और चीज बताओ कैपिटल है ना ऑलरेडी यहाँ पर तो मैं लायबिलिटीज की साइड लिखूंगी क्या नहीं तो इसको क्या कर दूंगी डैश यहाँ पर क्या लिखूंगी अच्छा डैश की जगह ना आप यहाँ पर 0 डालना क्योंकि फिर वो प्लस माइनस लगेगा ठीक है क्या डालेंगे 0 क्या डालेंगे 0 और कैपिटल के नीचे कितना 4000 इजी इजी ओके अब यहाँ पर हम दोनों का हमारा पूरा इक्वेशन ना मैच होना चाहिए ये चीज आप ध्यान रखो इक्वेशन क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए हमेशा ये चीज ध्यान रखोगे अब देख लो एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कैश प्लस बैंक प्लस फर्नीचर क्योंकि यही सब लिखा हुआ होगा यहाँ पर अगर और एसेट्स आ जाएंगे तो यहाँ पर और प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हो मशीनरी एटसेट्रा 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 और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो समझ आ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सभी को समझ आ रही है पक्का एसेट साइड सभी को समझ आ रही है एवरीवन इक्वल्स करके लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कैपिटल के अंदर जो अमाउंट होगी वो लिखी जाएगी प्लस लायबिलिटीज में ना डैश ना करके आप लोग 0 करना डैश ना करके क्या करोगे 0 प्लीज राइट डाउन 0 वाई बिकॉज फिर वो प्लस माइनस लगेगा और खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है सो मेक इट 0 ठीक है एग्जाम्स में भी अगर ऐसा आता है तो आप 0 कर सकते हो मार्क्स नहीं कटते हैं इसके कोई नहीं काट सकता आपके मार्क्स ठीक है इजी वैसे आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का भी कब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ठीक है समझ आ रहा है इजी है ओके मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है फर्स्ट डे राइट उसको देख लेना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कभी भी चेंज हो सकता है सो उसमें ये आ सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन और ट्रेडिशनल अप्रोच इज इट क्लियर इजी ओके ग्रेट यहाँ पर सारे भी आप अमाउंट्स लिखते चले जाओगे फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड वाला देखते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक अब यहाँ पर एक में कैश ऐड हो रहा है एक में बैंक लेस हो रहा है दोनों भी केस किसके हैं एसेट्स के दोनों भी केस किसके हैं एसेट्स के अब देखो यहाँ पर कैश में तो ऐड कर दिया 200 लेकिन बैंक में माइनस कर दिया 200 सो हम क्या करेंगे यहीं पर ही करेंगे एंड यहाँ कैपिटल और लायबिलिटीज में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है तो इक्वेशन यहाँ पर भी मैच होती है दोनों में 0 ही बनता है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इज इट क्लियर बस इसी तरीके से आपको करना है सर लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको बैलेंस निकालना है बैलेंस निकालोगे एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है सभी को टैली कर देना है टैली कैसे करोगे एसेट्स को एक साथ और लायबिलिटीज को एक साथ
Is it clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay, you have to make this right now. Make it. अरे make it right now, I'm saying. कोई गेम नहीं होगा अब इसके बाद, प्लीज मेक इट. गेम्स ही खेलते रहोगे क्या पूरा दिन है? ये फॉर्मेट बना लो इफ यू वांट. प्लीज मेक दिस फॉर्मेट. डन. चलो क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से घर पे करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया कैसे करना है ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट. उसमें आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व लिखना है, कितनी अमाउंट होगी और कब कौन सा डेबिट या क्रेडिट होगा, राइट. यू हैव टू मेक दैट वन. वो होमवर्क है आपका. दैट इज फॉर योर होमवर्क. मेक दिस वन राइट नाउ. डू इट प्लीज क्विकली. बी क्विक. डन. सारा हो क्या? वेरी गुड. नो. थर्ड वाला क्या? लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई. हाँ. 500 कैश. पैसा भी तो आया ना. सैलरी इज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च. 300 and 100 is still payable for the month of March. So outstanding भी है और कैश भी पे किया. 100 आ गया ना. 100. कैश माइनस क्यों होगा बेटा? इस वाले में क्या होता है? जो सैलरी पेड है वो 300 वाली है, दैट इज कैश माइनस. एंड जो आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपीज, वो लायबिलिटी है. गॉट इट? सैलरीज में, एक्सपेंसेस में.
एक्सपेंसेस कहाँ से जाते हैं हमारे? कैपिटल में से। कैपिटल में से जब भी एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल में से माइनस होंगे, जब भी इनकम्स होगी कैपिटल में ऐड होगी। कैश, कैश माइनस करोगे, सैलरीज पे कर रहे हो ना, तो किस में कर रहे हो? कैश में तो कर रहे हो, तो कैश माइनस कर दो। कैश या बैंक, बैंक यू कैन डू, बैंक में से माइनस कर दो, दैट इज आल्सो डन, दैट इज आल्सो फाइन। डन। हाँ बिल्कुल, 300 लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, कैपिटल में से माइनस होगा। हाँ जी, और कैश में, कैश में से भी माइनस होगा। बेटा वो डिफरेंट है, यू आर आस्किंग मी फॉर 300 देन आई एम टेलिंग फॉर 300। 100 वाली अलग चीज है, आप एक काम करो ना, अलग अलग करो ना उनको। 300 वाला अलग कैलकुलेट करो, 100 वाला अलग कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू डू इट, हाउ द इक्वेशन इज इक्वलाइजिंग। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू हियर? यू हैव डन इट, वेरी गुड। हो गया हर्ष? क्या बात है, वेरी गुड। आपका हो गया क्या? नहीं हुआ? करो फिर। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। All those that have done, you can drink water if you want. If you want. आउटस्टैंडिंग वो है साइड में, उसका लायबिलिटी साइड में तो आउटस्टैंडिंग का हेड हो जाएगा, और एसेट्स में क्यों आएगा? तो लायबिलिटीज में लिखोगे ना वो भी कैपिटल, एक चीज लायबिलिटी एक चीज कैपिटल। ओके, आई टेल यू हाउ टू डू इट। वेट, सबका हो गया है? बाकी सारे कर लिए? हाँ, हैव यू डन टिल 5? प्लीज चेक योर आंसर्स। First is correct. Yes, ma'am. Second is correct. Yes, ma'am. Next is correct. Third one. Third one is correct. Yes, ma'am. Fourth one is correct. Fourth one देखो कैसे करना है। 300 बैंक में से गया, 300 लायबिलिटीज में से गया। आप चाहिए तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दो, चाहिए तो उसको लायबिलिटीज में से माइनस कर दो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका 100 इज फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी, लेकिन फिर आपकी कैपिटल भी ऐड होगी 100 से। नाउ यू गॉट इट? क्यों? क्योंकि 100 दिया नहीं है ना अभी, जब तक नहीं देते हैं वो हमारी कैपिटल में रहता है, सो वो हमारी कैपिटल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर? श्योर। जो चीज हम लोग देते नहीं है, जो चीज हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी कैपिटल को ऐड ऑन करेगी। इज इट क्लियर? कई बार वो कैश को भी ऐड ऑन करती है। फॉर एग्जाम्पल लोन आपने लिया था, लोन आपने लिया था, आपने जो लोन लिया था उससे लायबिलिटी तो ऐड ऑन हुई है, साथ ही साथ कैश भी तो ऐड ऑन हुआ था ना। समझ आया नहीं आया? तो ऐसे केसेस में दो चीजें होती है, या तो कैश ऐड ऑन होगा, या फिर जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है वो कैपिटल को इंक्रीज करेगी। समझ आया? इज इट क्लियर? पक्का? अनन्या कंफ्यूजन है बेटा? सबको समझ आया है? इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट नंबर 5, सबका सही है या नहीं है? व्हाट हैपेंड? नहीं है सही, क्या हुआ? क्या बेटा समझाओ उसको, आपका सही है ना? लास्ट वाला सही है, उसको समझाओ। ठीक है, बैलेंस सबका सही आ रहा है? ठीक है, आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज फॉर योर होमवर्क, प्लीज राइट डाउन 5, 6, 7, that is it. 5, 6 and 7 are for your homework. हाँ, illustration number 5, 6 and 7 are for your homework. Mark them. ठीक है, questions also, practical questions also you can do from your book. ठीक है ना? chapter 1 is already completed. Do those questions whichever are there in your test your knowledge. ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, यू कैन डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दोज एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? इजी है?
श्योर कर लोगे? Yes, ma'am. कोई भी क्वेरी आती है प्लीज ब्रिंग देम टुमारो. Okay? Okay then, thank you so much. It was really wonderful teaching you all today. And I really hope you liked the session. Did you? Yes, ma'am. Okay then. Thank you so much. Stay healthy, stay fit. Happy learning. Bye-bye.